السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آصفہ محفوظ اور میں ہوں مجاہد خان۔ پہلے شامل کریں گے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے بنگلہ دیش کے ساتھ تعمیری تعلقات قائم کرنے کے پاکستان کے عزم پر زور دیا ہے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک سے پولیو کے خاتمے کے لیے پاکستان کی گیٹس فاؤنڈیشن کے ساتھ شراکت داری بہت اہم ہے۔ نائب وزیر اعظم اور بیلجیم کے ان کے ہم منصب نے نیو یارک میں ملاقات میں دو طرفہ تعاون مزید مستحکم بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ایران کے صدر نے پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدہ علاقائی سیکیورٹی کے جامع نظام کے قیام کی طرف اہم قدم قرار دیا ہے۔ وفاقی حکومت نے ملک کے توانائی کے شعبے کے گردشی قرضے سے نمٹنے کے لیے 18 بینکوں کے کنسورشیم کے ساتھ مالیاتی معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ توانائی کے شعبے میں ڈھانچہ جاتی اصلاحات سے صارفین کو فائدہ ہوگا۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے آج ڈیرہ غازی خان میں الیکٹرک بس سروس کا افتتاح کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے آج کراچی میں خواتین میں پنک سکوٹر تقسیم کیے۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ کسی کو بھی صوبے میں حکومتی عملداری چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے علاقے لداخ میں بھارتی فوج کے ہاتھوں 4 افراد کی شہادت کے بعد کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج نے مزید 30 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ T20 ایشیا کپ کے سپر 4 مرحلے میں دبئی میں پاکستان کا مقابلہ بنگلہ دیش سے جاری ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے ساتھ پہلے مجاہد خان۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بنگلہ دیش کے ساتھ تعمیری تعلقات کو فروغ دینے کے پاکستان کے عزم پر زور دیا ہے، جو باہمی احترام، اعتماد اور علاقائی امن و خوشحالی کی مشترکہ خواہشات پر مبنی ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار نیو یارک میں بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس سے ملاقات کے دوران کیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور بنگلہ دیش کے دو طرفہ تعلقات کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا اور تجارت، علاقائی روابط اور عوامی رابطوں سمیت مختلف شعبوں میں تعاون مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر نے روابط مستحکم کرنے کے لیے پاکستان کے اقدام کو سراہا اور دو طرفہ تجارتی اور ثقافتی روابط بڑھانے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پولیو کا خاتمہ حکومت کی اولین ترجیح ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے گیٹس فاؤنڈیشن کے ساتھ شراکت داری اہمیت کی حامل رہے گی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس کے موقع پر گیٹس فاؤنڈیشن کے سربراہ بل گیٹس سے ملاقات کے دوران کیا۔ وزیر اعظم نے پولیو کے خاتمے کے لیے پاکستان کو فراہم کی گئی گیٹس فاؤنڈیشن کی اہم معاونت کو سراہا۔ انہوں نے پاکستان کے حالیہ سیلاب کے لیے گیٹس فاؤنڈیشن کے فراخ دلانہ عطیات کی بھی تعریف کی، جبکہ 2022 کے سیلاب میں امدادی کوششوں میں فاؤنڈیشن کے اہم کردار کا تذکرہ کیا۔ شہباز شریف نے بھرپور معاشی اصلاحات، معیشت کی کیش لیس ڈیجیٹائزیشن اور استحکام کے لیے حکومت کے اقدامات پر زور دیتے ہوئے گیٹس فاؤنڈیشن کے عملی، مثبت اور گراں قدر تعاون کا خصوصی طور پر اعتراف کیا۔ ملاقات کے اختتام پر صحت، غذائیت، ڈیجیٹل تبدیلی اور ملک کی وسیع تر سماجی و اقتصادی ترقی کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے مل کر کام جاری رکھنے کے مشترکہ عزم کا اظہار کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے نیو یارک میں اپنے بیلجیم کے ہم منصب میکسم پریوٹ سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے بڑھتے ہوئے دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا اور تجارت، ترقی، موسمیاتی تبدیلی، تعلیم سمیت باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے نیو یارک میں قونصلیٹ جنرل آف پاکستان میں کونسلر سروسز ایریا کا افتتاح کیا، جس کی حال ہی میں تزئین و آرائش کی گئی ہے۔ نیو یارک میں پاکستان کا تاریخی قونصلیٹ جنرل 1948 میں قائم ہوا تھا۔ اپنے کلمات میں نائب وزیر اعظم نے اس بات کا اعادہ کیا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو باوقار اور بہترین انداز میں خدمات فراہم کرنا پاکستانی مشنز کی اولین ذمہ داری ہے۔ انہوں نے قونصل جنرل اور ان کی ٹیم کی پاکستانی برادری کے لیے بلا تعطل خدمات یقینی بناتے ہوئے قونصلیٹ کے تاریخی احاطے کی بحالی کا کام مکمل کرنے کی تعریف کی۔
ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई माहदे का खैर मकदम किया है। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने इसे सियासी, सिक्योरिटी और दिफाई शोबों में मगरबी एशिया के इस्लामी मुल्कों के ताउन से खित्ते की सलामती के जामे निज़ाम के क़याम की जानिब एक कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि ईरान ने कभी जोहरी हथियार बनाने की कोशिश नहीं की और ना ही कभी करेगा। वफाकी हुकूमत ने तवानाई के शोबे के गर्दिशी कर्जे से निमटने के लिए 18 बैंकों के ताउन से 1.2 ट्रिलियन रुपए से जायद के मालियाती माहदे पर दस्तखत किए हैं। इस सिलसिले में दस्तखत की तकरीब इस्लामाबाद में मुनक्किद हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने न्यूयॉर्क से वीडियो लिंक के जरिए दस्तखत की तकरीब में शिरकत करते हुए इस माहदे को गर्दिशी कर्जों के बढ़ते हुए मसले से निमटने की कोशिशों में एक अहम संग मील करार दिया। उन्होंने कहा कि IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने उनके साथ मुलाकात के दौरान हुकूमती इस्लाहात की तारीफ की। उन्होंने कहा कि अगला मरहला डिस्कोज की निजकारी और लाइन लॉसेस के मसले से निमटना है। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि तंजीम नौ के हवाले से ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी फाइनेंसिंग है। उन्होंने इसे सब के लिए मौजू सूरत हाल करार देते हुए कहा कि तवानाई के शोबे में ढांचा जाती इस्लाहात के फ़वाइद बिलाखिर सारिफीन तक पहुँचेंगे। वज़ीर तवानाई सरदार अवैस अहमद खान लगारी ने मुल्क के गर्दिशी कर्जे को 6 साल में ख़त्म करने की हुकूमती आज़म का इजहार किया है। एक वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि तमाम इदारों की मुश्तरका काविशों से गर्दिशी कर्ज ख़त्म करने का ख्वाब पूरा हो रहा है। पेट्रोलियम के वज़ीर अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि हुकूमत पेट्रोलियम और रिफाइनरी की सनत को मज़ीद तरक्की देने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने ये बात आज इस्लामाबाद में पार्को के चेयरमैन मोमिन आगा की क़यादत में पाक अरब रिफाइनरी लिमिटेड के एक वफ़द से गुफ्तगू करते हुए कही। मुलाकात में तवानाई के शोबे में ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने कहा है कि पाक चीन दोस्ती दोनों ममालिक की जानिब से पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के तहत खलाई टेक्नोलॉजी में ताउन बढ़ाने के साथ सड़कों की तामीर से खलाई तहकीक की जानिब बढ़ रही है। चीन के सूबे हनान में हनान सैटेलाइट स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनियों के दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी इंजीनियर चीनी इंजीनियर्स के साथ मिलकर सैटेलाइट तैयार कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि चीन पाकिस्तानी इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले के तहत खलाई साइंस में इश्तराक अमल में दो तरफ़ा शराकतदारी की गहराई का अकास है। एहसन इकबाल ने CRRC याओयू लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड का दौरा भी किया, जहां उन्होंने कंपनी को पाकिस्तान के ML1 रेलवे को जदीद बनाने के मंसूबे में शमूलियत की दावत दी। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान और चीन रेलवे को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, जिसका मकसद राब्तों को बेहतर बनाना, लागत में कमी करना और पाकिस्तान की माशी तरक्की में नई तवानाई शामिल करना है। योर टाइम्स न्यू मटीरियल टेक्नोलॉजी कंपनी के दौरे के दौरान एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान CPEC के दूसरे मरहले के तहत नई टेक्नोलॉजीज से फ़ायदा उठाने के लिए पुरअज़्म है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने पाकिस्तान और इटली के दरमियान इक़्तिसादी और सियासी रवाबित मज़ीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया है। वो आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान में इटली की सफ़ीर मैरिलीना अर्मलिन से के एजाज़ में एक ज़ुहराने से खिताब कर रहे थे। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि इटली यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। उन्होंने इटली में मुतहरिक पाकिस्तानी बिरादरी के किरदार को उजागर किया, जो दोनों ममालिक के दरमियान एक अहम पुल का किरदार अदा कर रही है। इटली की सफ़ीर ने इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि इटली की पार्लियामेंट में इटली पाकिस्तान दोस्ती ग्रुप की चेयरपर्सन सारा फेरारी जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगी। सेनेट के चेयरमैन सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने आज आज़रबाईजान की मिली मजलिस की स्पीकर साहिबा अली गफरोवा से टेलीफोन पर बातचीत की। चेयरमैन सेनेट ने साहिबा अली गफरोवा को इस्लामाबाद में 10 नवंबर से शुरू होने वाली बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। साहिबा अली गफरोवा ने भी चेयरमैन सेनेट को अगले माह की 29 तारीख को बाकू में होने वाली बैनुल-अक़वामी पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की बाज़ाब्ता दावत दी। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक ने हाउसिंग के शोबे की पायदार तरक्की, असासों के जदीद इंतज़ाम और जामे शहरी ढांचे के क़याम के लिए मिलकर काम जारी रखने के अज़्म का इजहार किया है। इस अज़्म का इजहार आज इस्लामाबाद में हाउसिंग के वज़ीर मियां रियाज हुसैन पीरज़ादा और एशियाई तरक्याती बैंक के वफ़द के दरमियान मुलाकात के दौरान किया गया।
اس موقع پر وزیر ہاؤسنگ نے شفافیت، وسائل کے مؤثر استعمال اور جدید اعداد و شمار پر مبنی نظام کے ذریعے سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے حکومتی عزم کا اظہار کیا۔ غربت کے خاتمے اور سماجی تحفظ کے وزیر سید عمران احمد شاہ نے ملک کو پائیدار ترقی کی جانب گامزن کرنے کے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں جنوبی کوریا کے ایک وفد سے بات چیت کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر نے پنجاب میں جاری امدادی کارروائیوں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ سیلاب سے متاثرہ خاندانوں میں امدادی سامان کی بروقت تقسیم یقینی بنانے کے لیے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ فریقین نے عالمی امن، انسانی بنیادوں پر خدمات اور سماجی تحفظ کے فروغ کے لیے تعاون مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ صنعت و پیداوار کے بارے میں وزیراعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر خان نے اسلام آباد میں بیلاروس کے سرمایہ کاروں کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران پاکستان میں بیلاروس ٹریکٹر اسمبلی لائن کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر ہارون اختر نے کہا کہ بیلاروس کے ساتھ ٹریکٹر کے بارے میں معاہدے سے زراعت کے شعبے کو فروغ حاصل ہوگا اور کسانوں کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سرمایہ کاری ہائی ہارس پاور ٹریکٹرز کے لیے مقامی پلانٹ لگانے کے عمل کو یقینی بنائے گی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ٹریکٹر بنانے کے لیے پاکستان اور بیلاروس کے درمیان بزنس ٹو بزنس تعلقات انتہائی اہم ثابت ہوں گے۔ وزیراعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود احمد خان نے کہا ہے کہ حکومت نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں پاکستان نیشنل آرٹس کونسل میں نیشنل یوتھ سمٹ سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ترقی اور عالمی سطح پر اس کے مقام کا انحصار نوجوانوں کے حوصلے اور عزم پر ہے۔ رانا مشہود نے تمام متعلقین پر زور دیا کہ وہ قومی تعمیر میں پاکستان کے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے آج ڈیرہ غازی خان میں ای بس سروس کا افتتاح کیا۔ تفصیل ریڈیو پاکستان ملتان کے نمائندے ماجد علی محمود سے۔ ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں آج ای بس سروس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں 101 ای بسیں چلائی جائیں گی، جن میں ڈی جی خان، لیا، کوٹ ادو، مظفر گڑھ اور تونسا شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ترقی اب بڑے شہروں تک محدود نہیں رہے گی، کیونکہ ڈیرہ غازی خان کو بھی بڑے شہروں سے بھی پہلے الیکٹرک بسیں مل چکی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی پنجاب کو ترقی اور خوشحالی کے یکساں مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈیرہ غازی خان میں مناسب جگہ پر کینسر کے علاج کا مرکز بھی قائم کیا جائے گا۔ عالمی بینک نے صوبے میں ریکارڈ ترقیاتی منصوبوں کے آغاز پر پنجاب حکومت کو سراہا ہے۔ پاکستان کے لیے عالمی بینک کی کنٹری ڈائریکٹر بلورما امگبزار نے آج لاہور میں سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب سے ملاقات کے دوران پنجاب حکومت کے ترقیاتی منصوبوں کی تعریف کی۔ بلورما امگا بازار نے کام کی رفتار پر نظر رکھنے کے لیے نگرانی کا نظام متعارف کرانے پر پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز کو بھی سراہا۔ چین کے ایک وفد نے آج لاہور میں پنجاب کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے کے ہیڈ آفس کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران ریلیف کمشنر پنجاب نبیل جاوید نے وفد کو سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیوں سے متعلق بریفنگ دی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے خواتین میں پنک سکوٹرز کی مفت تقسیم کو سندھ میں خواتین کو بااختیار بنانے کی جانب اہم قدم قرار دیا ہے۔ وہ آج کراچی میں خواتین میں مفت سکوٹر تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ خواتین کے لیے پنک ٹیکسی بھی جلد متعارف کرائی جائے گی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا کہ سندھ حکومت نے ہمیشہ خواتین کی بہبود کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ بنگلہ دیش کے سیکرٹری داخلہ نسیم الغنی نے آج کراچی میں سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ سے ملاقات کی۔ انہوں نے ملاقات میں کراچی سے بنگلہ دیش تک براہ راست پروازوں اور دونوں ممالک کے درمیان شپنگ سروس سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ بنگلہ دیش کے سیکرٹری داخلہ اپنے ملک میں سیف سٹی منصوبے کے آغاز کے لیے سندھ حکومت کے تعاون کی خواہش کا اظہار کیا۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر سرفراز احمد بگٹی نے صوبے سے دہشت گردی کے خاتمے کی حکومت کے پختہ عزم کا اعادہ کیا۔ آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کسی بھی ریاست کی عملداری چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ وزیر اعلیٰ نے ضلع چاکی میں سیکیورٹی فورسز کی حالیہ کامیابیوں کو سراہا، جس میں گزشتہ خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کی گئی ایک کارروائی میں 2 دہشت گردوں کو ہلاک اور ایک کو گرفتار کر لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے صوبے میں پوست کی کاشت کے خلاف کارروائی شروع کرنے کا مشترکہ فیصلہ کیا ہے۔
वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी और मौसमियाती तब्दीली के बारे में वज़ीर आज़म की राब्ता कार रुमीना खुर्शीद आलम ने सूबाई और वफाकी हुकूमतों के दरमियान करीबी ताउन के ज़रिए मौसमियाती तब्दीली से निमटने के एजेंडे को तेज़ करने पर इत्तफाक़ किया है। दोनों रहनुमाओं ने इस्लामाबाद में एक मुलाकात के दौरान पाकिस्तान की उभरती हुई मौसमियाती तरजीहात और आलमी मौसमियाती मालियाती निज़ाम के ताउल से शुरू किए गए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। रुमीना खुर्शीद आलम ने आलमी मौसमियाती फ़ंड्स के हुसूल के लिए सूबों को तकनीकी और इदारा जाती ताउन फ्राहम करने के वफाकी हुकूमत के अज़्म का इआदा किया। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज समंदरों का आलमी दिन मनाया गया, जिसका मकसद जहाज़रानी के तहफ़्फ़ुज़, बहरी सिक्योरिटी और समुद्री माहौल की अहमियत पर तवज्जो मरकूज़ करना है। इस साल इस दिन का उन्वान है हमारे समंदर, हमारी जिम्मेदारी, हमारा मौका। इस दिन के मौके पर अपने पैगाम में बहरी अमूर के वज़ीर मोहम्मद जुनैद अनवर चौधरी ने समंदरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी बैनुल-अक़वामी कोशिशों पर जोर दिया। पाकिस्तान में तुर्किया के सफ़ीर डॉक्टर इरफान नज़रोगलू ने पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तालीम के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया है। वो तुर्किया के सफारत खाने में 167 पाकिस्तानी तलबा के लिए मुनक़िदा तारफ़ी प्रोग्राम में खिताब कर रहे थे, जिन्हें साल 2025 के लिए मुकम्मल फंडेड तुर्क स्कॉलरशिप से नवाजा गया। सफ़ीर ने तालीमी तबादलों और अवामी रवाबत को दोनों मुल्कों के दरमियान तारीख़ी बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए अहम करार दिया। भारत के ज़ेर कब्ज़ा गैर कानूनी जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक ने लद्दाख के इलाके में जारी एहतजाजी मुजाहरों के दौरान भारतीय फ़ौजियों की फायरिंग से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार किया। मीर वाइज उमर फारूक ने श्रीनगर में एक बयान में कहा कि लद्दाख में बगावत नई दिल्ली के 5 अगस्त 2019 के यकतरफा और गैर आइनी फैसले का बराह रास्त नतीजा है, जब जम्मू कश्मीर को उसके अवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ तकसीम करके मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में तब्दील कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि जाने बचाने और अमन की बहाली के लिए लद्दाख के लोगों से किए गए वादों को बिला ताख़ीर पूरा किया जाना चाहिए। दरियासना हुकाम ने मीर वाइज उमर फारूक को आज नज़रबंद रखा। श्रीनगर में उनकी रहायशगाह की तरफ जाने वाली तमाम गलियों पर खारदार तारें लगा दी गईं। ये इक़दाम मुत्तहदा मजलिस उलमा के एक तयशुदा इजलास से पहले किया गया, जो उनकी रहायशगाह पर मुनक़िद होना था, जहां सरकर्दा मजहबी तंजीमों के सरबराहान की जानिब से वक्फ के बारे में सुप्रीम कोर्ट के अबूरी फैसले से पैदा होने वाले खदशात के साथ साथ अहम समाजी और मजहबी मसाइल पर गौर करने की तवक्को थी। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में हुकाम ने लद्दाख के इलाके में मुजाहिरीन पर भारतीय फ़ौज की फायरिंग के नतीजे में कम से कम 4 अफराद की शहादत और 100 के ज़ख्मी होने के बाद कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक पुलिस और नीम फौजी दस्तों ने कम से कम 50 अफराद को हिरासत में ले लिया है। मुजाहिरीन लद्दाख को रियासत का दर्जा देने और 6ठे शेड्यूल में शामिल करने का मुतालबा कर रहे हैं। कारगिल, ज़िंस्कार, नोबरा, पदम, चांग, तांग, दरास और लामा यूरो में एहतजाजी मुजाहिरीन से निमटने के लिए बड़ी तादाद में पुलिस और नीम फौजी दस्ते तैनात किए गए हैं। उधर तृणमूल कांग्रेस की रुकन पार्लियामेंट माहुआ मोत्रा ने लद्दाख के इलाके में मुजाहिरीन से निमटने के लिए मोदी हुकूमत के तरीक़ाकार को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। माहुआ मोत्रा ने सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में कहा कि लद्दाख के अवाम ने बरसों इंतज़ार किया कि भारतीय हुकूमत अपने वादे पूरे करेगी। माहुआ मोत्रा ने कहा कि अब उन्हें गद्दार कहना तो ही नामीज़ है। गजा में इस्राएली फ़ौज ने अपने मुसलसल हमलों में बच्चों समेत मज़ीद 30 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है। गजा में अक्टूबर 2030 से जारी इस्राएली जारहियत में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 65,400 से ज़ायद हो गई है। इटली ने इमदाद लेकर जाने वाले ग्लोबल समट फ्लोटेला काफले की हिफाजत के लिए दूसरा बहरी जहाज़ रवाना किया है। अतालवी वज़ीर दिफा ने अवान ज़ेरी को बताया कि इसराइल की जानिब से गजा की बहरी नाकाबंदी को तोड़ने के लिए 40 कश्तियों पर मुश्तमिल अवामी काफिला गजा की जानिब बढ़ रहा है। ताहम ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक उस पर ड्रोन हमला किया गया है। रेडियो खबरनामा जारी है और अब वक्त है खेलों की खबरों का।
आज दुबई में T20 एशिया कप टूर्नामेंट के सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ अब से थोड़ी देर पहले तक 9.3 ओवर्स में 42 रन बनाए थे और इसके 4 खिलाड़ी आउट हुए थे। इससे पहले बांग्लादेश ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का खवातीन का अंडर 19 T20 टूर्नामेंट हफ्ते से कराची में शुरू होगा। 12 रोज़ा टूर्नामेंट में मुल्क भर से 60 खवातीन क्रिकेटर्स एक्शन में नजर आएंगी। 2 मरहले के फॉर्मेट में 4 टीमें कॉन्करर्स, चैलेंजर्स, स्टार्स और स्ट्राइकर्स मध्य मुकाबिल होंगी। टूर्नामेंट में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली खिलाड़ियों को नवंबर में हाई परफॉर्मेंस कैंप और दिसंबर में पाकिस्तान के अंडर 19 के बांग्लादेश के दौरे में मौका मिलेगा। इफ्तिताही मैच कॉन्करर्स और चैलेंजर्स, स्टार्स और स्ट्राइकर्स के दरमियान खेले जाएंगे। स्कूलों के लिए पीसीबी टैलेंट हंट प्रोग्राम 2025-26 मुल्क भर में शुरू हो गया है। पहले रोज लाहौर में 7 मैच खेले गए। दीगर अजला में मैच कल से शुरू होंगे। टूर्नामेंट में 31 स्कूल शिरकत कर रहे हैं। श्रीलंका में बांग्लादेश ने पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 2-0 से हराकर साफ अंडर 17 चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है। दूसरा सेमीफाइनल भारत और नेपाल के दरमियान खेला जाएगा। वज़ीर आला पंजाब के मुआविन खुसूसी राशिद इकबाल नसरुल्लाह से रुस्तम एशिया बशीर भोला भाला और उनके वफ़द ने मुलाकात की और सूबे में खेलों के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया। राशिद इकबाल नसरुल्लाह ने सेहतमंद सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए नौजवान नस्ल की हौसला अफजाई करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वफ़द ने उन्हें देसी दंगल और दीगर रवायती खेलों के बारे में आगाह किया। मुआविन खुसूसी ने देसी दंगल के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया और कहा कि यह पंजाबी सकाफ़त का लाजमी जुज़्व है और इसे महफूज बनाने के लिए इसको जारी रहना चाहिए। खेलों की खबरें आपने सुनी और अब हम शामिल करेंगे तिजारती खबरें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत के बाद एक तस्वीराती शराकतदारी में दाखिल हो गए हैं, जिसका मकसद सरमाए की मंडियों पर निगरानी को बढ़ाना है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जानिब से जारी की गई एक प्रेस रिलीज़ के मुताबिक इस शराकतदारी से SCCP को मंडी की फौरी, तेज़ और मज़ीद महफूज निगरानी करने में मदद मिलेगी, जबकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी यही जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। लाहौर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर सिविल सर्वेंट्स के वफ़द ने आज पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी इस्लामाबाद का दौरा किया। दौरे का मकसद शुरका को पाकिस्तान के उभरते हुए सरकारी खरीदारी के मंजरनामे और जारी इदाराजाती कोशिशों के बारे में आगाही देना था। पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर हसनात अहमद कुरैशी ने वफ़द का खैर मकदम किया और शुरका को इदारे के इस्लाहाती सफ़र के बारे में बताया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेज़ी का रुझान देखा गया कि ASE 100 इंडेक्स 1043 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 1,59,280 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हुजम 1673 मिलियन से ज़ायद हिस्सेस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 1780 मिलियन से ज़ायद हिस्सेस का लेन देन हुआ था। आज के इलेक्ट्रिक लिमिटेड कंपनी के सबसे ज़्यादा 406 मिलियन से ज़ायद हिस्सेस का कारोबार हुआ। आज मजमूई तौर पर 486 कंपनियों के हिस्सेस का लेन देन हुआ, जिसमें से 208 कंपनियों के हिस्सेस की कीमतों में इजाफा, 237 में कमी, जबकि 41 कंपनियों के हिस्सेस की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। रफान में इस प्रोडक्ट्स कंपनी के हिस्सेस की कीमतों में सबसे ज़्यादा 70 रुपये 39 पैसे का इजाफा, जबकि PIA होल्डिंग के हिस्सेस की कीमतों में 1556 रुपये 18 पैसे की कमी हुई। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला कुछ इस तरह रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 281 रुपये 30 पैसे और कीमत फ़रोख्त 281 रुपये 80 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग 378 रुपये 69 पैसे और 379 रुपये 36 पैसे। यूरो 330 रुपये 54 पैसे और 331 रुपये 12 पैसे। सऊदी रियाल 75 रुपये और 75 रुपये 13 पैसे। UAE दिरहम 76 रुपये 69 पैसे और 76 रुपये 73 पैसे। जापानी येन 1 रुपया 89 पैसे और 1 रुपया 90 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 3,40,192 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1,78,933 मीट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई, जिसमें से 49,405 मीट्रिक टन बरामदी और 1,29,528 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। और अब सुनते हैं फ़न की दुनिया से कुछ खबरें।
परफॉर्मिंग और विजुअल आर्ट्स के बारे में अलहमरा एकेडमी लाहौर की डायरेक्टर नवीन रोमा ने कहा है कि अलहमरा आर्ट्स काउंसिल लाहौर सूबे भर में फ़नून व सकाफ़त, अदब, मौसीकी और परफॉर्मिंग आर्ट्स के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर रही है। रेडियो पाकिस्तान लाहौर के सकाफ़ती नामा निगार सज्जाद परवेज़ के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इस वक्त अलहमरा आर्ट्स काउंसिल मुख्तलिफ दौरानिए के डिप्लोमा और मुख्तसर कोर्सेज करा रही है, जिनके ज़रिए बच्चे और मौसीकी पसंद अफराद मौसीकी के मुख्तलिफ आलात बजाना सीख सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की मुमताज़ डांस एक्सपर्ट और फिल्म स्टार ज़री पन्ना भी बाकायदगी से नौजवान तलबा को क्लासिकी रक़्स सिखाती हैं। 28वां बीजिंग मौसीकी मेला आइंदा माह की 10 से 24 तारीख तक चीन में मुनाकिद होगा। दुनिया भर से 700 से ज़ायद फ़नकार मेले में अपने फ़न का मुज़ाहरा करेंगे। मेले में कंसर्ट्स, ओपरास, मास्टर क्लासेस और नौजवानों के प्रोग्राम शामिल होंगे। रेडियो न्यूज़ बुलेटिन में अब हम आपको लिए चलेंगे साइंस की दुनिया में। जॉर्ज मैसन यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन ने कहा है कि आम ज़ियाबतीस के ख़तरे को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। क्लिनिकल ट्रायल से मालूम हुआ है कि रोज़ाना आम खाने वालों में शुगर और जिस्म में चर्बी के इम्कानात कम होते हैं। मुताले से पता चला है कि तमाम फलों में आम वो वाहिद फल है जो ज़ियाबतीस से बचाव के लिए अमली हिकमत अमली के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। साइंसदानों ने चावलों की पैदावार को ज़्यादा मौसर और माहौल दोस्त बनाने के लिए एक नया तरीका मुतारिफ कराया है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स और जियांगनान यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन की दरियाफ्त के मुताबिक नैनोस्केल सेलेनियम चावल के पौधों पर के छिड़काव से चावल की पैदावार में इजाफा, ग़िज़ाइयत में बेहतरी और खाद के इस्तेमाल में कमी आती है। ये तरीक़ाकार जहरीली गैस के अखराज को भी कम करती है और मिट्टी ज़रख़ीज़ बनाता है। माहिरीन का कहना है कि इस पेशरफ से किसानों के लिए लागत कम हो सकती है और दुनिया भर में आबो हवा और माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने में मदद मिल सकती है। और अब मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात गुलाम मुर्तज़ा से। मौसम की ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक इस वक्त मुल्क के भलाई हिस्से बादलों की लपेट में हैं और चिराट, अटक, तिलागंग, मियांवाली, गुजर खान और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश भी हो रही है। मुल्क के ज़ेरी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क है। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क ही रहने का इम्कान है। तहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पठवार, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला जुज़वी और आलूद रहने के अलावा तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। आज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा दर्जा हरारत नौकुंडी में 40, जबकि डीआई खान, बखर, बहावलनगर, दादू और सिबी में 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में 36, मरी में 24, लाहौर में 38, कराची में 32, पेशावर में 33, कोयटा में 34, मुजफ्फराबाद में 34, गिलगित में 32, करदू में 27, श्रीनगर में 29, जम्मू में 34, लेह में 22, पुलवामा में 29, अनंतनाग में 28 और शोपियां में ज्यादा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। तहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा और मरी में चंद मकामात पर बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश खैबर पख्तूनख्वा में मालूम जबा में 21, सैदो शरीफ में 17, दीर में 16, काकूल में 11, चिराट में 7, पटन में 6, चतराल में 4, कलाम में 3, द्रोश और तख्तबई में 2, मीरखानी बादशाह खान एयरपोर्ट पे 1, जबकि कश्मीर मुजफ्फराबाद में 10, गडीरपट्टा में 9 और मरी में 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। और अब आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर सुन लीजिए। वज़ीर आज़म ने बांग्लादेश के साथ तामीरी ताल्लुकात कायम करने के पाकिस्तान के अज़्म पर जोर दिया है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए पाकिस्तान की गेट्स फाउंडेशन के साथ शराकतदारी बहुत अहम है। नायब वज़ीर आज़म और बेल्जियम के उनके हम मनसब ने न्यूयॉर्क में मुलाकात में दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मुस्तहकम बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। ईरान के सदर ने पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई मुआहदा इलाकाई सिक्योरिटी के जामे निज़ाम के क़याम की तरफ अहम कदम करार दिया है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे इमरान अशरफ, सुपरवाइजर शोबा उर्दू हिना शाहिद, मुदीर होम डेस्क यासिर असलम, मुदीर फॉरेन डेस्क मतीउल्लाह, न्यूज़ प्रोड्यूसर सईद अहमद कुरैशी, मुदीर आला अब्दुल बासित खान, निगरान आला अमानुल्लाह सिप्रा, पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तस्वीरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं।
اسی کے ساتھ آصفہ محفوظ، مجاہد خان اور ہماری نیوز ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد